जो which will really be a satisfying factor for these senior cricketers कि हमारे जो coach है राहुल द्रविड़, he believes in giving his backing to those players who have shown his form. Like एक छोटा सा example दे रहा हूँ, इस T20 ये ODI series में पहला मैच में Gill was opening, not Ishan Kishan. I was playing, not Surya Kumar Yadav. तो सबने सोचा कि ये कैसा हो गया, मगर राहुल द्रविड़ and Rohit Sharma, they back because Gill has scored in ODI. You know, whatever ODI matches happened in last 6 months, whenever he got an opportunity, he scored. Similarly with Shreyas Iyer. So you just, someone is playing well in T20 doesn't mean he gets an automatic entry to the ODI side. But yeah, I mean, then you can also say that Surya scored well in T20, he's in the test side. I think one of the Mumbai openers, I'm unable to get his name right, he scored a 100 in the Ranji Trophy match. He's been picked in the T20 side. So, you know, I mean, you have to be ready for all kinds of format. Priti Shaw, I'm sorry. You have to be ready for all kinds of format, and that's how cricket should be played. Not that I'm only good at playing test cricket or I'm good at playing ODI cricket, but as far as this year is concerned, it's going to be ODI cricket all along. तो अब स्पेशलाइजेशन के क्या डिमांड्स हैं विनीत? T20, ODI, टेस्ट मैच क्रिकेट, T20 में फील्डिंग स्टैंडर्ड्स और जो फिटनेस लेवल्स हैं वो भी उसमें काफ़ी फ़र्क आता है अगर आप ODI और टेस्ट मैचेस से कंपेयर करें तो यहाँ पे जैसे विराट कोहली ने एक स्टैंडर्ड सेट किया इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, तो क्या आपको लगता है कि ऑलराउंडर के लिए प्रेफरेंस है या स्पेशलिस्ट बैट्समैन के लिए प्रेफरेंस है वहाँ पे? नहीं, ऑलराउंडर के लिए स्पेशलिस्ट तो डेफिनेटली चांसेस बेटर हैं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए, या विकेट कीपर कम बैट्समैन हो। तो जैसे अपना ऋषभ पंत था, नो अब इंजर्ड है, बट अभी ईशान किशन है। तो जो ये कहते हैं कि भी जो ऑलराउंडर है उसके लिए एक अलग स्पेस है क्रिकेट में। जैसे हम अभी 3 साल पहले तक जब तक हार्दिक पांड्या स्क्रीन में नहीं थे, स्कीम ऑफ थिंग्स में क्रिकेट में नहीं थे, तो हम लोग एक फास्ट बॉलर देख रहे थे जो द वन हु कैन बैट। तो जैसे ही हमारी हार्दिक पांड्या के ऊपर नज़र पड़ी तो हमारी वो जो सर्च है वो क्रिकेट के ऊपर कि भी हाँ जी हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए था जो बैट कर सके, वो थोड़ा सा आने वाले 4-5 साल तक हमें वो मिलेंगे। तो अब तो इसमें कैप्टनसी की क्या डिमांड्स है? फिटनेस की तो डिमांड्स हैं, कैप्टनसी की भी अपनी फिटनेस होती है, तो T20 में ऐसी क्या डिमांड्स हैं फॉर द कैप्टन? इसमें ये रहता है कि भी कैप्टन ये चाहता है कि भी हाँ जी मेरी टीम फिट हो, जो मैं अपने जो एक्स्ट्रा रन्स हैं वो सेव करके चलूँ। अगर आपने 10 रन भी अगर एक मैच में आपने सेव किए हैं तो 10 रन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्रूशल टाइम पे अगर आपने एक बाउंड्री रोकी या एक डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया या एक ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट कर दिया, वो तभी होगा अगर आपकी लेग्स फ्रेश हैं, और उसके लिए फ्रेश ब्लड होना ही चाहिए। इंद्रनील, कैप्टनसी की क्या डिमांड्स हैं? ऑन द फील्ड डिमांड्स हैं, ऑफ द फील्ड डिमांड्स हैं, मीडिया के भी डिमांड्स हैं, उनके सवाल और जवाब देने पड़ते हैं। तो हाउ डू यू सी Hardik Pandya tackling? He's doing it very well. In fact, the other day, whenever he's given an opportunity to talk, he loves talking, and at times he's bragging also about his resources, and he's got a good team. He's been groomed well by that last year's IPL, where he captained Gujarat to that victory, historic win it was, and first time franchisee coming and winning a title of that sort. And Hardik was brilliant. I mean, the way he led the side, he was cool, he was composed. And he's batting like MS Dhoni in certain ways. He's taking the game to the deep and then finishing off in style in the last couple of deliveries before it's over. So he's got that he can control his nerve, which is very important. And one good thing has happened with Hardik is that earlier they said if he can't bowl, he can't play as a batsman. Now, even if he's not bowling, he can still play as a batsman. Because he can go up the order, which he's shown in the last IPL. That's why, and he's fit. He wants to go and be in the thick of things. And once you're the captain, your responsibility towards your body, towards your team, towards your nation also increases. And he knows he's going to lead India eventually in white ball cricket. So he's being groomed well, and this is a nice progression. Do it with T20, then bring him slowly into ODI, and that's how it should be done, instead of giving him in one go. तो ये क्या पॉलिसी रही है ये सेमीफाइनल डिफीट के बाद जो दिसंबर में in the T20 World Cup, heads do roll, appointments are not fixed, ऐसा कोई नहीं ये हो सकता था
on our DD Sports only, we have mentioned, during the New Zealand series, right after the World Cup, that no selector is sacked. And this culture of sacking is actually gone because of Rahul Dravid. You have to give him that, because he's someone who's very dignified. I mean, everything happens with certain amount of dignity. You can't just throw a Rohit Sharma or a Virat Kohli out and tell them that on their face that you're no good. They have done, you look at the runs Virat has scored, or Rohit Sharma. I mean, forget the strike rate. They've been amazing players for India, for their franchisee, wherever they have played. They are big cricketers of current generation. The entire world would look up to them. But that sacking culture is gone. You can't just do it like that. That sacking culture, it's not going to work. And thanks to Rahul Dravid for keeping that culture, that you could have a bad day. That doesn't mean you're out of scheme of things. तो राहुल द्रविड़ इतने इम्पोर्टेंट क्यों है एज अ हेड कोच? उनको ये दर्जा तो दिया गया है, बट व्हाई इज इट दैट ही इज सो इम्पोर्टेंट? और ये आप जो समझा रहे हैं कि द ट्रांजिशन पीरियड है, इट्स नॉट अ सैकिंग अपॉइंटमेंट है, अभी ट्रांजिशन में किसी और को लिया जा रहा है. दे हैव बीन रीपोस्टेड टू अदर अपॉइंटमेंट्स विद इन द स्कीम ऑफ क्रिकेट. तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? No, I mean, Dravid is, of course, the way he used to bat, calm, composure he would allow the ball to come to the body. He would never, Saurav Ganguly wasn't scoring. He went up to Dravid and asked him, what should I do? He said, clear your mind, clear the boundary. So you have to have that mental clarity is very important. Rahul Dravid can give it in the team, which is important, and that's what he's giving. That's why there is, despite whatever happens, we lose semi-final games, but there is some sort of dignity, some sort of pride attached to the fact that they're playing for their country, they're representing their country. These players are absolute assets, big assets for the team. So let's have a look now at the current ODI captain Rohit Sharma's career stats. और यहाँ पे हम देख सकते हैं 148 मैचेस, विनीत 3,853 रन्स, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 118 और 4 शतक, 29 अर्धशतक, स्ट्राइक रेट 140. काफ़ी बढ़िया प्लेयर है. विराट कोहली के अगेंस्ट अगर आप कंपेयर करें तो एवरेज थोड़ा नीचे है इनका, बट वेरी सीजन प्लेयर. बहुत बढ़िया है, इनके स्टैट्स तो बहुत ही अच्छे हैं और सीजनड हमारे ओपनर्स भी हैं ये, कि भी इन्होंने जैसे ही इनको एक मिडिल ऑर्डर से सीधा ऊपर लाए, इनको ओपन करने के लिए दिए, तो उन्होंने एक पिलर की तरह इंडियन टीम को संभाला है वहाँ पे. अब ओडीआई अगर करियर स्टैट्स देखें, पहले हमने आईपीएल के भी देखे थे, प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस. यहाँ पे वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 9,554 रन्स, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 264. ओपनर को मौका जरूर मिलता है, बट न्यू बॉल को फेस करते हैं. विनीत, क्या कहना चाहेंगे? एक बैट्समैन के लिए नया बॉल खेलना, हम कहते हैं कि अगर हम ऊपर खेलेंगे तो हम रन ज़्यादा बनाएंगे, बट नया बॉल को खेलना भी एक टेक्निक है. बॉल स्विंग होता है और स्विंग होते हुए बॉल को खेलना ही बड़ा डिफिकल्ट है. तो आप अपने करियर में भी फास्ट मीडियम बॉलर रहे हैं. कौन से चैलेंजेस आपको लगे हैं अगेंस्ट स्पेशली बैट्समैन जो नए बॉल को फेस करें, अटैकिंग बैट्समैन लाइक रोहित शर्मा या वन ड्रॉप बैट्समैन लाइक विराट कोहली? ये लोग एक्चुअली क्या है कि भी ये जब भी आप लाइन को भटके, ये छोड़ते नहीं है. आपको इनके अगेंस्ट आपको एक्यूरेसी ही मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, चाहे आप स्पीड डालो, चाहे 140 डालो, 150 डालो, डजेंट मैटर एट ऑल, बट इनको एक्यूरेसी ही इनको कंटेन कर सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता. तो इंद्रनील, इनका अप्रोच क्या रहेगा? अभी जैसे आपने कहा कि एडवांस में दे हैव बीन नेम्ड और अननेम्ड फॉर द T20 सीरीज, ऑल्दो दे आर प्लेइंग फॉर द ODI एंड द टेस्ट मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ कोर्स श्रीलंका इन दिस थर्ड ODI दैट्स गोइंग टू बी प्लेड टुडे. तो उनका अप्रोच अब क्या रहेगा? दे वांट टू ऑब्वियसली प्रूव द सेलेक्टर्स रॉन्ग. I mean, look at the numbers they have. Rohit Sharma, for instance, Virat Kohli, they have nothing else to prove. But the fact that, after some time you have to let it go, right? I mean, in one format you have to let it go. I mean, Dhoni also quit Test cricket just to ensure he's fit in white ball cricket, and he was playing white ball cricket with so much of energy because you need that time off. It's not easy being that, living off suitcases like that. And these guys have done it for so many years. And for instance, Rohit Sharma, I mean, look at the numbers. I mean, how can you think of leaving him out? But eventually, you have to also admit to the fact that he's got little. He's not as quick on his feet as he would be. He was 3 years ago against short pitch deliveries. What a player he has been for India. I mean, someone getting 500s in a World Cup in 2019 in England.
and double hundred, 3 double hundreds to his name. I mean, this 3 or 2, whatever the number, and this guy is so robust. I mean, look at the way 5 IPL title wins as captain. I don't think, and T20 is one format where consistency is a huge issue. I mean, no team or a player, individual player can be as consistent like you could be in Test cricket or ODI cricket, because the time frame is so short and you get such little time to settle down. And Rohit and all that, they've close to 4,000 runs. Virat has over 4,000 international runs. I don't think anyone, probably Surya, the way he's batting, he will get near that. But, you know, वो बोलते हैं कि जाना easy है, रहना मुश्किल है. So these guys have actually been there, done that. They've stayed for such a long time. This is the hallmark of a legend, and which they are. विनीत, यहाँ पे हमने आंकड़े देखे हैं सारे, जो रोहित शर्मा, विराट कोहली और हमारे जो यंगस्टर्स भी, उनके आंकड़े बहुत बढ़िया हैं. हार्दिक पांड्या डिक्लेयर्ड एज दी कैप्टन, वाइस कैप्टन ऑल्सो फॉर दी ODI सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड. क्या यहाँ पे हम पर्सनैलिटी देख रहे हैं प्लेयर का, जैसे राहुल द्रविड़ हेड कोच हैं, या हार्दिक पांड्या एक फ्लैम्बॉयंट ऑलराउंडर है भारतीय टीम के लिए? यहाँ पे क्या सिलेक्टर्स की सोच पर्सनालिटी पर है? क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ही अपने पर्सनालिटी को लेकर लीड करते हैं टीम को. पर्सनालिटी यहाँ पे सिर्फ आंकड़े बोलते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बोलती है, यही उनकी एक पहचान है, बाकी और भी कुछ भी नहीं है. लीडरशिप में पर्सनालिटी रोल प्ले तो करता ही है. नहीं, लीडरशिप में आपको अगर आप लीडर हैं तो आपको टीम को फ्रंट से लीड करना है. अगर कहीं टीम फंसी हुई है उसको वहाँ से निकालना है, वही आपकी पर्सनालिटी है. उसमें और कुछ भी नहीं है पर्सनालिटी में. Indranil, what's your interpretation of this? No, I think we have moved on. There was a time there used to be only one boss in the team, one captain for all formats. If he's playing all formats, it's Saurav Ganguly generation. If Saurav was the vice president of BCCI, I happened to interview him and asked him, what is Virat? I mean, how do you see Virat? He said Virat is playing all formats. He should lead the team in all formats. But time has changed. Like last year, we said we can't have 2 white ball captains. And that's why Virat was said, you step back, Rohit will take over. He wanted Rohit to only captain T20 side, right? That's how he decided to quit. But the selectors and the board said, no, you have to quit from even ODI cricket captaincy. And that's how Virat came, was pushed away, Rohit came. And this year, we are having different captains. We have 2 white ball captains like we have in women cricket. We have 1 test captain, which is Rohit Sharma. So, you know, different people, different, you know, horses for courses policy we are following right now, the Indian selectors and the board, which is what it should be. I mean, Rohit Sharma, despite so much effort, he couldn't the World Cup or a Virat Kohli. So time has come to move away and look at other options, because when you have other options, why not? That's what I mean. And it doesn't matter. It's of course going to clash. You know, big players playing together, but you have to keep your ego back. Virat used to say quite often when he was the captain, that if you're playing for India, keep your ego back in the hotel and come and play cricket. So this time here also, you know, Hardik is a senior player, Rohit is a senior player, Virat is a senior player. They might have egos. They have egos, but how you manage them, you know, it's very important. And that's why the presence of Rahul Dravid in the dressing room is adding a lot of balance to that the power struggle, which whatever struggle or power center we have in Indian cricket, the Rahul Dravid is making it very, very easy for every one of us. तो इंद्रनील और विनीत, कुछ आंकड़े देख लेते हैं. जो कंपैरिजन है T20 फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, ये पिछले 2 साल के कंपैरिजन ग्राफिक्स हैं. 1080 runs on the part of both players. Virat has played 30 matches, fewer than Rohit has played 40. और यहाँ पे Virat has highest score of 122 not out, Rohit 74. Virat has scored the 1 century that we mentioned earlier, 12 half centuries. Rohit has scored 8 half centuries, and we have the 4s and 6s comparisons. So Rohit, it seems, has had greater luck when it comes to clearing the boundary or reaching it. But if you look at aggregates, Virat has the edge over Rohit as a one-drop batsman there. But during this period also, Rohit has been the captain, so one can certainly offset some of the pressure from that as well. Vineet, nothing much to differentiate the players. यहाँ पे दोनों का performance ही बढ़िया रहा है, और इस stage of their career उनसे पूछा जा रहा है कि भाई T20 क्यों नहीं खेल रहे हो. जैसे इंद्रनील ने कहा कि अभी कोई there is no one boss. जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो रोटेट की जा रही हैं. तो आपका क्या कहना है इस पॉलिसी के बारे में?
नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तभी तो यंगस्टर्स को आने का मौका मिलेगा। अगर हम इन दोनों ही क्रिकेटर्स को देखते रहेंगे, सूर्य कुमार यादव एक हमारी एक नई ऑप्शन है जो हमें मिली है, और श्रेयस अय्यर हैं, और साथ में विकेट कीपर आए हैं ईशान किशन। तो ये तीनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो हमें T20 में कहीं बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं हमें। तो स्पॉइल्ड फॉर टैलेंट बेसिकली, जो पहले नहीं था। और एक चीज है कि अगर आप इफ यू डोंट अलाउ दीज सीनियर्स टू जस्ट मूव असाइड अ लिटिल and don't test the other guys, how will you groom the youngsters? That's also a huge thing. And if you see the numbers between Rohit and Virat, Rohit is someone who he believes in hitting the boundaries, and Virat, because of his supreme fitness, he believes in taking ones. अब बोला जाता है क्रिकेट में जो सिंगल ले पाता है वो किसी भी फॉर्मेट में रन बनाएगा, and Virat has shown that, and he's still hungry to play T20 cricket. If you ask me, if deep down inside, I'm sure Virat would be itching to go and play the T20 series, but somehow he has to follow. He's not the system anymore. When he was the captain, he was the boss. He's no more the boss right now. Things have changed. Indian cricket has moved forward. So you have to समय के साथ चलो अगर जिंदा रहना है तो। और विनीत, जैसे इन्होंने बात की कि जो प्लेयर स्ट्राइक को रोटेट करता है, उस प्लेयर के पास एडवांटेज है अपने लिए और टीम के लिए भी। आपका क्या है, आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल ठीक करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि जब आप सिंगल लेते हो तो आप प्रेशर रिलीज करते हो और स्कोर भी मूव करता रहता है, चलता रहता है। और एक नए प्लेयर के अगेंस्ट बॉल कर रहे हैं आप। एब्सोल्युटली राइट। तो फिर क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी? या अगर वो दो ऑप्शन है कि आप बाउंड्री भी मार रहे हैं, 6 भी मार रहे हैं, और फिर आप सिंगल या डबल भी ले रहे हैं, तो एग्रीगेट वाइज आप प्रेफर करेंगे कि कोई सिंगल या डबल ले, पर लॉन्ग टर्म क्या प्रेफर करते हैं आप? देखिए, लॉन्ग टर्म में हम ये सोचते हैं कि भी कितनी मेडिन बॉलें निकाली जाएं जी, जितनी मेडिन बॉलें निकाली जाएंगी उतना अच्छा रहेगा। बट जब आपके सामने सिंगल लेने वाला बैट्समैन होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको कंटेन करना। In fact, 2021 World Cup, which was played in the Middle East, the 4 teams were Pakistan, New Zealand, England, I think Australia. Australia won the final, beating New Zealand. So I remember these 4 teams ran the maximum 1s and 2s in the entire tournament. So T20 also is not about hitting 4s and 6s, it's also about 1s and 2s. People don't understand that. People have a misconception, okay, T20 है तो छक्का मारेगा, ये मारेगा, ऐसा नहीं है। You have to सिंगल भी लेना पड़ेगा आपको। तो बॉलर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे फॉर दी T20s? अगर हम जस्ट ब्रीफली इसी को ही देखें, क्योंकि आप खुद फास्ट बॉलर रहे हैं। बॉलर्स के लिए तो एक्चुअली क्या है, विकेट्स थोड़ी सी टफ हैं, वाइट बॉल थोड़ा सा स्विंग कम होता है, वंस इट शाइन चली गई तो फिर आप बॉल का स्विंग होना भी मुश्किल है। तो ये थोड़ी सी है कि भी बॉलर को अपना एक लाइन मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर उसकी आर्मरी भी अगर कुछ नहीं है तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अभी हम कुलदीप यादव के कुछ स्टैट्स इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 3 for 51, प्लेयर ऑफ द मैच इन द सेकंड ODI अगेंस्ट श्रीलंका, और इनका इंटरव्यू भी हम दिखाएंगे जहां पे उन्होंने 200 विकेटें ली थी। तो चैनल टीवी वापस आ गया कोलकाता में सीरीज जीतने के बाद, और आज स्पेशल एडिशन है चैनल टीवी का। हमारे साथ है कुलदीप यादव। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, 200 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे, थैंक यू सो मच। स्टैट आते रहते हैं हमारे पास। ओके, बताएंगे 200 विकेट बहुत बड़ा टास्क है ये, मतलब अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ यार। 200 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत प्राउड फील भी करता हूँ इस चीज़ को लेके कि 200 विकेट कंप्लीट हो गए। तो अभी ये एकदम से आया तो मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ। स्पेशली कांग्रेचुलेशन फॉर द मैन ऑफ द मैच। और किस हिसाब से प्लान किया आपने आज का? मैंने इतना कुछ प्लान नहीं किया था, जस्ट कि मेरा फोकस था कि मैं गुड लेंथ पे ज़्यादा बॉल रखूँ, क्योंकि मैं ईडन में बहुत खेला हूँ। विकेट थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए इतना अच्छा नहीं होता, मतलब बैट पे ज़्यादा अच्छा बॉल आता है। तो मैं सोच रहा था कि हर बॉल में कोशिश करूँ कि गुड लेंथ पकड़ के बॉल डालूँ, क्योंकि ज़्यादा रूम ना दूँ। एक दो जितनी भी 1-2 बॉल रूम मिली तो उसमें से कट पे रन चले गए हैं। तो मेरा यही एम था कि गुड लेंथ पे रखूँ, विकेट टू विकेट रखूँ, वहाँ से वेरिएशन करूँ, अंदर अगर उंगली डालनी है तो भी विकेट से ही रखूँ। तो वही मेरा प्लान था। और ऑफकोर्स जो रिदम की वजह से जो जितना भी एग्रेसिव मैं रिदम में रहा हूँ उसकी वजह से मुझे पेस वो मिला है मतलब अपने रिदम में और बॉल में। तो उसकी वजह से उतना टाइम नहीं मिल रहा था कि आगे खेले कि पीछे खेले, तो वो बहुत हेल्प कर रहा है मुझे। फेवरेट विकेट तीनों विकेटों में से? सनका का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उस सीरीज़ में वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और फॉर्म में भी हैं। तो वो एक टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, क्योंकि वो उनको आइडिया है भी कैसे बैटिंग कर रहे हैं और बहुत लंबा लेके जा रहे हैं गेम को।
तो वो सबने इतना टीम मीटिंग में इतना प्लान किया था कैसे आउट करना है, कैसे आउट करना है, तो डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट विकेट था। स्पेशली बैटिंग पे आते हैं, आपने कूद के एक पीछे मतलब दूसरी विकेट पे आके एक कट का चौका मारा और एक फ्री हिट पे, लेकिन पहले हम फ्री हिट पे आएंगे, लेकिन आप उसमें क्या सोच रहे थे फ्री हिट पे? मतलब नहीं, आपको पता था फ्री हिट है? जैसे ही स्लोवर फेंकी तो मेरे दिमाग में आया था कि ये फील्डर ऊपर दे, तो मैं था मैं कि कट मारूंगा तो निकल जाएगा, बट वो हाथ में ही चला गया बॉल। तो एक्चुअली उसकी वजह से बहुत लोगों ने मुझे बोला है अभी ड्रेसिंग रूम में, तो इस पर बहुत काम करूँगा। बट ऑफकोर्स बैटिंग में बहुत काम किया है, जब भी मुझे मौका, जब फ्री रहता हूँ, जब भी नेट्स पे काफ़ी बैटिंग करता हूँ और सोचता हूँ कि टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ 15, 20, 25 रन अगर बैटिंग जल्दी आती है, तो यही प्लान था मेरा। और खेल भाई खेले थे साथ में, तो कॉन्फिडेंस था कि बैट्समैन से साथ में खेल रहा है तो उल्टा सीधा शॉट नहीं मारना है, तो ये भी दिमाग में था। टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच, आज मैन ऑफ द मैच, तो मतलब अगला नहीं बिल्कुल, आई मीन मैं इतना सोचता नहीं हूँ कि मैन ऑफ द मैच बनना है, बट अभी जैसे मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हो गया। पहले मैं हमेशा सोचता था कि परफॉर्मेंस करनी है, विकेट निकालने, बट अभी मैं सोचता हूँ कि मुझे बॉलिंग अच्छी करनी है, जो मेरा जो मेरी स्ट्रेंथ हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बैट बॉल कम डालूँ मैं, और बैट्समैन को थोड़ा सा बना के मारता है या फिर रन बनाने जाता है तो उसमें चांसेस रहते हैं विकेट लेने के। और रिस्ट स्पिनर जैसे आप जानते ही हो गए आप कि अगर आप अच्छी एरिया पर बॉल डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास विकेट आते हैं। तो मेरा एम वही रहता है कि अच्छी बॉलिंग करूँ, गुड लेंथ पकड़ के बॉल डालूँ। तो यही मैं सोचता हूँ हमेशा जब भी टेस्ट मैच खेलता हूँ या फिर वनडे खेलता हूँ या फिर T20 खेलता हूँ, तो उसमें यही सोचता हूँ कि मुझे अच्छी बॉलिंग करनी है। चलो, आप इंडिया के लिए ऐसी अच्छी बॉलिंग करते रहिए, दबा के मैन ऑफ द मैच लेते रहिए और हम मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे एक थैंक यू बोलना चाहूँगा इस सजेशन के लिए कि T20 आपने खेला पूरा, उसके बाद लास्ट वनडे खेला, मैं सीधा टेस्ट मैच से सीधा वाइट बॉल में आ रहा था। तो जिस तरह से आपने इनपुट दिए ग्राउंड पे कि ऐसे क्योंकि आप इतना खेल रहे थे इनके साथ, तो आइडिया था कि कैसे बॉलिंग करनी है, तो उसके लिए थैंक यू कि छोटे छोटे इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी अनलकी हम इतना खेल नहीं रहे साथ में, बट ऑन द सूर्या के तो हम बैटिंग कोच थे, कुलदीप यादव के हम बॉलिंग कोच भी बन गए हैं, तो ये नोट कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं त्रिवेंद्रम में, और आप गुड लक, ऐसी कामयाबी हासिल करते रहिए। कुलचा मिलता है जल्दी सुन। और ये थे कुलदीप यादव जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं इन द सेकंड ODI, 3 for 51। ईडन गार्डन्स का पिच जो है बैट्समैन के लिए कन्वीनियंट नहीं था। विनीत, हमने देखा कि जब चहल इनको इंटरव्यू कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक अ पॉडकास्ट, काफी फ्रेंडली कंपटीशन नजर आ रहा है, दोनों ही परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि भी कुछ टाइम पहले ये दोनों इकट्ठे खेल रहे थे, तो दोनों ने टैंडम में परफॉर्म किया और इंडिया को बहुत सारी विकटें दिलाई हैं इन दोनों ने। तो इनकी जुगलबंदी भी बहुत अच्छी रही है, अभी इंटरव्यू में देखा हमने, और बॉलिंग में भी जुगलबंदी इनकी बहुत अच्छी थी कि अगर एक चहल अगर विकेट नहीं ले पा रहा तो कुलदीप ले रहा था। अभी आप ये तो वर्ल्ड कप से पहले ये टीम में नहीं थे, तो इनकी आपस में जुगलबंदी बहुत अच्छी है। और रिस्ट स्पिनर के क्या चैलेंजेस हैं? हमने जो रिप्लेस देखे, जो उन्होंने विकेटें ली हैं इन दैट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, विकेट टू विकेट डालने, बट फॉर अ रिस्ट स्पिनर कितना मुश्किल है? देखिए, एक्यूरेसी तो चाहे रिस्ट स्पिनर हो चाहे फिंगर स्पिनर हो, एक्यूरेसी तो चाहिए। और वेयर जो इन्होंने श्रीलंका एक टाइम पे 16-15 ओवर में 100 रन के आसपास था और एक विकेट डाउन थी, और जैसे ही इन्होंने आए और एक विकेट निकाला और जो एक इन्होंने स्टेटर वन डाला उसमें, तो उससे जो कमबैक किया इंडिया ने, तो छट से करके 2 आउट किए इन्होंने और एक रन आउट हुआ, और दूसरे एंड से अक्षर पटेल ने एक आउट किया। Indranil, your take. Clearly, Kuldeep Yadav is focusing on batting as well. As a left-handed batsman, he spoke about how important it is to get 25-30 runs, especially if the team is not making it to a targeted score. कहीं भी कहीं मुश्किलें हो, he can hold one end up. In fact, he scored 10 not out in that second chase, ODI, yeah. in which he was declared the player of the match. No, absolutely, and you can't just play with one skill set. You know, I'm a bowler, I won't bat. You won't be entertained. In fact, Ashwin also lost out a lot of cricket in white ball cricket because he was not focusing too much on batting. Then he came and started hitting the ball, and now he's batting so well. And he was considered also because you have to bat and bowl. And Kuldeep and Kulcha, I see them. They're not playing regularly right now, but eventually they will be playing for India in this World Cup. Kulcha combination has worked in the past. In '85, Ravi Shastri and Shivramakrishnan. Between 20th and 40th over, Sunny Gavaskar used to be the captain. They used that strategy that तुम हमको ये 2 स्पिनर को बताया गया. They took him for a lunch or something. Both the spinners, Sunny Gavaskar took them for a lunch and told them, you have to get me at least 4 to 5 wickets in that 20th and 40th over.
अब 10-10 ओवर डालेंगे और so they trying adopting that policy in that 19 World Cup. I'm sure 2023 World Cup maybe they'll try doing something like that, and that's why their roles are important. They're rotated very nicely, and look at the way they're complementing each other. कि आप तो इस मैच में मैन ऑफ द मैच हुए, नेक्स्ट मैच खेलेंगे. तो एक लास्ट में जो हुआ था बांग्लादेश सीरीज में, वाज मैन ऑफ द मैच, सेकंड मैच ड्रॉप हो गया, तो दैट्स बिकम अ जोक, बट दिस इज हाउ इट शुड बी. एंड वो विनीत भाई और अर्जुन, यू नो, कई बार मैं पूछता हूँ प्लेयर्स को कि आपको बड़ा प्लेयर बनना है कि अच्छा प्लेयर बनना है. तो योर so that's the thing, and he's saying this is a sign of maturity that I want to bowl well rather than controlling which is not within your control. You just control the things which you can control, which is bowl to your strength, and that's why he got those wickets rather than thinking how many wickets I'll get. So this is a lovely way to, you know, move forward in life. विनीत, अगर हम दोनों प्लेयर्स को अगर कंपेयर करें, जुगलबंदी बहुत बढ़िया है. युजवेंद्र चहल का जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, वो कॉन्फिडेंस पे खेलते हैं, बट उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डिप कर गया है. वो कैसे अपने फॉर्म में वापस आएंगे? कुलदीप यादव ऑफ कोर्स बड़े स्टूडियसली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं. चहल कैसे इम्प्रूव करेंगे अपना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. चहल बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छे लय में भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट हाँ, थोड़ा सा विकटें उनको थोड़ा सा कम मिल रही हैं. तो विद द टाइम और जैसे ही आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस बूस्ट देते हैं तो डेफिनेटली वो विकेट्स भी लेगा हमारे लिए. क्योंकि पहले उसने पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल में भी देखा गया हो तो आपने ये अपनी टीम के लिए मेन बॉलर खेले हैं. तो एक तरीके से कंपटीशन विद इन द टीम इज वेरी हेल्दी. हमने जब हमारे जो 4 फेम्ड स्पिनर्स खेलते थे फॉर इंडिया, दे प्लेड टुगेदर इन टैंडम. पर अब हम ये देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं सिलेक्शन पॉलिसी में कि यू पिट वन प्लेयर अगेंस्ट द अदर, दोनों ही कोऑपरेट करते हैं, दे हेल्प ईच अदर, बट ऑन द फील्ड उनका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव कर गया. Absolutely, and you know, if Chahal is not playing, Kuldeep is playing. Chahal is giving those, and he admitted, Kuldeep said that, and giving that, you know, passing on that useful information because he was making that transition from red ball to white ball. And little things really help, and when teammates are behind you, and this is the culture, I mean, you have to give credit to Rohit Sharma, Rahul Dravid for creating that environment in the dressing room that no one is insecure. There's a job security. No matter how badly you do, you still get your chance to come and play and show your talent. And it's not an individual game. It's not a lawn tennis or something. It's a team game. Whatever you do, team ke hit mein karo. So that's the culture, and which is why we are still standing tall despite not winning an ICC tournament for nearly 10 years. Last June में 2013 में हम जीते थे. फिर भी हम डटे हुए, our chin, you know, we have our chin up right now, and we're still talking big things about cricket because we love the sport, and this is what, and sports teaches you to be a good loser also. You can't be a bad loser. You will lose. I mean, you win some, lose some. But this is how it is. This is how you grow. तो विनीत, हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की काफी बात करते हैं कि किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, बट मोर इंपॉर्टेंटली टीम को जीतना है. और यहां पे हम देख रहे हैं कि जो मैनेजमेंट, कोच और कैप्टन एक तरीके से उस पॉलिसी को काफी आगे ले जा चुके हैं. प्लेयर्स भी ये समझते हैं, और ऑल्दो वो compete कर रहे हैं एक दूसरे से फॉर देयर प्लेस इन द साइड, बट उनको ये समझ है कि हमें एक साथ ही आगे बढ़ना है. आपको ये ट्रांजिशन नजर आ रहा है जब आप खेलते थे और अब जो गेम जैसे खेला जा रहा है? नहीं, तब पहले भी होता था. जो सीनियर प्लेयर्स होते थे वो छोटे यंग प्लेयर्स को अपना गाइड करते थे कि हाँ जी, आप बॉल इस तरह डालें या आप बैटिंग इस तरह करें. तो हमेशा ये रहा है, ऐसा नहीं है. दिस इज़ दी अनदर वे ऑफ बूस्टिंग दी को प्लेयर्स ऑल्सो, कि सीनियर प्लेयर्स हमेशा जूनियर को साथ लेके ही चलते हैं. So let's have a look at what the tweets are telling us on social media, because what the public says is equally important for us. और यहाँ पे हम जो tweets हमारे दर्शक भेज रहे हैं regarding the Indian team's performance. Congratulations to the men in blue on completing the 10th bilateral ODI series victory versus Sri Lanka at home. Series sealed. और लीजा is saying, should India make changes? हमने भी ये सवाल पूछा है. A 10th consecutive series win at home against Sri Lanka. Kuldeep broke the game wide open on his comeback at the Eden Gardens, and Rahul held his nerve when the chase got tricky. 22 home series victories in the last 25 attempts is truly a phenomenal achievement.
This is from the former India batsman VVS Lakshman. And then we have Team India has a golden chance to claim a 3-0 series sweep against Sri Lanka if they win the third ODI today. That is from Doordarshan Sports. And then from First Sports, we have already sealed series with a contrasting wins, a comfortable one while defending in Guwahati and hard-fought one while chasing in Kolkata. India wouldn't mind a bit more clinical effort against Sri Lanka in the third ODI. तो विनीत, यहाँ पे हमने पब्लिक ओपिनियन का भी हमें एक टेस्ट मिला है। वो भी ये पूछ रहे हैं कि भाई चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि अभी एडवांस में ही टीम्स अनाउंस कर दी हैं कि आगे हम न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे, अभी श्रीलंका के साथ खेल रहे हैं। और जो तीसरे ओडीआई में आपका क्या कहना है? 100% सीरीज़ हम जीत चुके हैं और जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? अगर उनको खेलने का मौका नहीं दिया तो वो बाहर बैठे बैठे प्लेयर को भी जंग लगता है। तो दैट मीन्स आज मेरे हिसाब से 3 या 4 चेंजेस होनी बनती हैं। कितना मोटिवेटेड रहेगा एक प्लेयर? अभी 3-0 सीरीज स्वीप चाहिए उन्हें, बट जो डिफिकल्टी होती है एक बार आप सीरीज जीत जाते हो, फिर आप उस अपने फॉर्म को कैसे मेंटेन करते हो? I mean, the way we have been playing of late, last 7-8 years or last 10 years, we're doing very well in bilateral matches, as we've talked about. So to prepare well, you should take every match is a knockout match. You just go there, because whatever you're doing it for that 70 screen, which is the World Cup. So you have to take every game seriously. You just can't say that, okay, I'm done the series, so I can take it easy. No, you can't do that. And this is how you grow. When how you build a stamina when you're playing cricket or any sport. When you get tired, if you give that extra 15-20 minutes, if you can do more workouts, that will give you the stamina. So here, similarly, if you are won the series, make sure you make a 3-0. Why not? If you get an opportunity to win, winning is a habit. You inculcate it, and it's going to stay on. And like the Australians did across 3 World Cups, 99, 2003 and 2007, 3 World Cups, the way they played cricket, sheer dominance. 1, 2, 3 went back early. I remember one of the biggest knocks Andrew Simons played against Pakistan in 2003. 4 down, he came down, and 80 or something odd runs, and the knock he played, that's the confidence. That's the thing. Everyone is responsible. It's not over till it's over. विनीत, your parting words before we wind up. आज तीसरा ओडीआई है, क्या तैयारी रहेगी हमारी? हमारी तैयारी पूरी है और मेरे को लगता है कि जो चेंजेस हम सोच रहे हैं कि बैटिंग में थोड़ा सा 1-2 चेंजेस होनी बनती हैं, कि जो हमारे यंग जैसे सूर्य कुमार यादव हैं और विकेट कीपर को अंदर आना चाहिए और एक फास्ट बॉलर को अंदर आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि भी इस चेंज से हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला और विनिंग जो स्ट्रीट है वो चलती ही रहनी चाहिए इसमें, क्योंकि श्रीलंका इज़ ऑलरेडी डाउन, T20 हार चुकी है और वनडे सीरीज़ हार चुकी है। तो आई थिंक कि कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी पाएगी। Well, it's time for me to thank both our experts on Cric Live for being with us on this program and giving us their valuable opinion in terms of what has happened for the Indian cricket team so far. Thank you so much, Indranil. Thank you, Arjun. For giving us your flamboyant opinions. And Vineet, of course, Pleasure. your technical responses to my questions. Thank you. Well, that's all as far as today's edition of Cric Live is concerned. We'll continue to give you match updates on Doordarshan Sports. Till then, it's namaskar and goodbye.